آپ ایسے سمجھے نا کہ جیسے اس ماں کی حالت آپ سمجھے یا اس باپ کی حالت سمجھے کہ جس کے بچے بچپن میں اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں, اس سے بچھڑ چکے ہوں, اور کئی سالوں کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے, اس ماں کے سامنے وہ بچے آئے, جو ان بچوں سے مل کر اس ماں کی حالت ہوتی ہے, ایک خالق و مخلوق کے ساتھ مل کر اس رشتے, اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر کی بات. سر آپ جن یہ لوگوں نے مان لیجیے زندگی کو ٹھٹا اور مذاق سمجھا ہے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے, جن کو اس چیز سے آگاہی ہے, آشنائی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی, ان کو اس درد کا احساس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو, آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں, یقین ماننا یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو بھی رونا آ جائے, کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس ویڈیو کو دیکھا تھا تو میں بھی اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور میرے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. دوستو, یہ ایک ایسے بھائی کی سٹوری ہے جو کہ اسلام میں غلطیاں ڈھونڈنے لگے تھے, پر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ یہ اسلام کو ہی اپنا دین مان بیٹھے. دوستو, یہ ویڈیو بڑی ہے, اس لیے زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ریورڈ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. نیکسٹ کالر ہے آدتیہ سنگھ. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے, آپ 5 منٹ کا اپنا کیس پریزنٹ کیجیے. ہیلو کیسر سر. ہیلو سر, کیا حال ہے آپ کا؟ جی سر, میں آپ کی اسٹریم پہ سے پہلے بھی آ چکا ہوں, اف یو ریمبر. جی, آپ کا نام فیملیئر ہے, بالکل فرمائیے. جی, میں نے اس پہ بات کی تھی نا, میرج والے ایشوز پہ, پولیگیمی پہ. جی, تو ویسے تو آج میں اسلام و فوبس پہ بات نہیں کروں گا, آج میں کچھ کانفیس کروں گا یہاں پہ, اس لیے میں آیا ہوں. مطلب کہ اسلام و فوبس تو ایک ٹائم سے میں نہیں رہوں گا, اسلام و فوبس تو نہیں تھا, لیکن ہاں اسلام سے مجھے تھوڑا سا اعتراض بہت ٹائم سے رہا, اور اسی اعتراض کو لے کے میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کر ڈالی. دا پاسٹ 6 منتھس آپ کہہ سکتے ہیں, 6 مہینے سے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے, میرا بس فری ٹائم میں یہی ہے کہ اسلام کو ریسرچ کرو. اور بہت سارے یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا, چاہے وہ سبیل احمد ہیں اور چاہے ون میسج فاؤنڈیشن رہا ہے, اور مینلی تو میں نے یوتھ کلب کو دیکھنا اسٹارٹ کیا. میں راجہ ضیاء الحق سر ایک ہیں, وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تو محمد علی صاحب ہیں, راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں, ہاں, ہیں علی احتشام ہیں, بالکل میں نے ان لوگ کو زیادہ سر سنا ہے, ہاں یوتھ کلب میں وہ, لیکن میں راجہ سر کو زیادہ سنا, میں نے راجہ ضیاء الحق سر کو. تو اب تو مطلب کہ اس اسٹیٹ پہ آ گیا ہوں میں کہ مطلب کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ اسلام ہی جو ہے وہ ٹرو ہے, اس میں کوئی مطلب کہ مجھے تو اب نہیں لگ رہا ہے کوئی شک ہے اس میں. ماشاءاللہ. 2 قدم آپ کے رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے پورے کرے. آپ نے ای میل بھیجی تھی, مجھے یاد آ گیا ہے, رائٹ؟ جی, میں نے آپ کو میل کیا تھا. ہاں, اچھا, اب جو باقی سینسٹیو باتیں ہیں وہ آپ پبلکلی آپ نہ کہیں, میرا خیال ہے. نہیں, میں وہ تو کبھی نہیں کہوں گا, وہ تو میں نے پرسنلی آپ کو کہا تھا, لیکن وہی میں نے کہا تھا کہ فیملیز کا ایک ایشو ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن آدتیہ بھائی, سوری آدتیہ بھائی, پرائیویٹ لائف نہ شیئر کیجیے. صرف ایک سوال, صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتا دیجیے گا. صرف ایک سوال, وہ یہ ہے کہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اسلام ٹرو ہے, تو آپ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سناتن دھرم سے ہے, یعنی ہندو فیملی سے ہے؟ جی, چھتری ہوں میں. ٹھیک ہے, کہا تھا چھید ہے, لوگ سنتے نہیں ہیں. جی آدتیہ بھائی, جی کیری آن. نہیں, ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا, آئی ایم سوری. ہاں, تو مطلب کہ ایک میں نے بہت ریگرس ایک ریسرچ کیا ہے, اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. تو مطلب کہ میرا, اور مینلی یہ چیز میں بس ایک چھوٹا سا مختصر مطلب کہ چھوٹا سا بریفلی کروں گا کہ جو مینلی مجھ پہ ایفیکٹ آیا وہ میرا ایک دوست تھا, اس کا بھی نام عامر ہی ہے, وہ میرا بیچ میٹ ہے, ہم لوگ ساتھ میں, ہاں ہم لوگ روم میٹس ہیں ایک طریقے سے کالج میں. تو مطلب کہ اس نے جب وہ ایک ہوتا نا آپ لوگ میں تبلیغی جماعت, مطلب کہ وہ بندہ اس میں چلا گیا, اس کی لائف میں نے 360 روٹیٹ ہوتے دیکھی ہے, اور اس کی لائف جب روٹیٹ ہوئی تو پھر میں ہو گیا پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, ہم لوگ بیئر پیتے تھے, ہم لوگ پارٹیز کرتے تھے, ہم لوگ کی گرل فرینڈ تھی, دونوں انجوائے کر رہے تھے لائف کو ہر طریقے سے, اور وہ بندہ ایک دم بالکل ہٹ گیا, ایک دم اس کا مطلب کہ پورا ایک لائف چینج ہو گیا, اور میں پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرا دوست ایک ایسا ہوتا جا رہا ہے, اور میں اپنی وہی پرانی لائف میں انجوائے کر رہا تھا ایک دم بڑھیا سے. پھر دھیرے میں نے اس سے پوچھا, یار کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اب تو ساتھ نہیں بیٹھتا, موویز نہیں چلتا ہمارے ساتھ, پب نہیں چل رہا ہے,
बियर वियर भी छोड़ दी, सिगरेट भी नहीं पीता और ब्रेकअप कर लिया, क्या चल रहा है ये तेरे लाइफ में? तो उसने मतलब इनकरेज किया कि यार तू एक बार ट्राई कर, मतलब कि वैसे मैं इतना हार्डकोर फॉलोअर कभी नहीं रहा हिंदुइज्म में, मतलब कि मुझे वैसे भी वो सब बकवासी लगता था स्टार्टिंग से, कहता नहीं था घर पे लेकिन वो सब लगता था कहानी किससे हैं। और मतलब कि बहुत वैसे भी ज़्यादातर हिंदू फैमिली क्या होती है, ये बहुत बेहतर लफ्ज़ लिबरल है। होती है, बहुत लिबरल रहती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करोगे तो कुछ कुछ कहा जाता है घर में, ऐसा कुछ देखिए कहा भाई, भी नहीं अब गया। खुदा कलामी की माज़रत, ये जो आपने बाद में किस्से कहानी कहा है, ये कंपैरेटिवली बेहतर लफ्ज़ है। जो ये पहले मेरी एनालिसिस है, मैं किसी के ये नहीं आई कहता। आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि थोड़ा-सा चले हार्श होना ठीक है, वो कभी-कभी ना वो मेरा बहरहाल रहा है प्लीज़ कि करिए। मुझे वो फील नहीं हुआ। और जी। फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने दोस्त को वापस लाना है मेरे जैसा जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए, बस मेरे साथ वैसे एंजॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो ठीक। एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ, म्यूजिक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टीज नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम चेंज करो ये। बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब मेंटली कि मुझे ये चाहिए माशाल्लाह। किसी भी हालत में। अब तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन अब घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं, मम्मी पापा दोनों जो हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। यही बात मैं आपसे और कहना मैं चाहता था कि दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट देखिए, कि मुझे लगता है कि जी, कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होके चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा जी। वो बात आएँगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत जॉइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुनें, समझें, उसको समझना है एनालाइज़ अगर आप करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही वेरी बता के इंपॉर्टेंट। एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो। खुद रिसर्च करो अच्छा, और फिर जो ऐसा चीज़ है लगे वो। आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है। मैं आपको ईमेल जी, भेजूँगा क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक़्त गुज़र रहे हैं ना, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में ना बहुत से लोग इससे गुज़रते थे कि फैमिलीज़ उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है। तो उसका कुछ तरीक़ा-ए-कार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूँगा। मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूँगा। आप ये कदम उठाएँ। मैं राजा ज़िया साहब से, उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है। मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं, बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की। क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एन्जॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहा था ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, ज़्यादातर सोते वक़्त, यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना, 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 ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है ये। तो माशाल्लाह, वही है, माशाल्लाह। अब तो मैंने मेरे ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है, मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, पता आदित्य, नहीं, अगर मेरे आप पास मौका मुझे था और एक मुझे एक हमेशा बात ये बताएँ, अफ़सोस होगा। एक बात बताएँ, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप जी ज़हनी सर। तौर पे तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। देन व्हाई वेट? व्हाई नॉट डू इट? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ-बाप का एक है, पेरेंट्स फिर का एक मैं लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल मैं कर आपको देते फिर हैं कि ईमेल में ही सही नहीं इसका है। फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़
अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक और मेरा डच एमपी फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मैं जॉब के साथ एक डाई का काम भी करना पसंद करूंगा, मतलब कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर अगर आप मुझे हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो पता नहीं सर, अभी तो कुछ भी, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। आप इसमें मज़ीद मैं चीज़ मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह मैंने अज़ीज़ मेल बहरहाल इन कर दिल दिया रही था मैं आपको, करूँगा। अल्लाह मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। ऐसा एक अल्लाह क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका आंसर, कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं है कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ अल्लाह रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, अल्लाह लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरह की गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके। वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक saying है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है। जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर, अल्लाह ताला की ज़ात, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है, और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सर, सोने में होता डेफिनेटली। है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान लेंगे। सर वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ अपने आप को, मतलब कि इस चीज से हटाने में, म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो होता है ना जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन, यू कांट रन ये फ्रॉम द वही रियलिटी। वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस सब जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से, मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम में गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मेरा जज़्यास तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ सर है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, लाइक इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया। मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, ये सब चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद नए यूट्यूबर दिखते गए मुझे, मैंने सब, मेरा पास टाइम यही हो गया। मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है।
धीरे धीरे डिग आपका आउट करते 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 और उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ ये वो सारा कुछ वही करते थे बट देयर सर कम्स अ ऐसा है कि टाइम इन सर योर लाइफ। हमारे पास सर, अब जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को, कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो जैसे सब कर रहे थे वो वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चले अल्लाह ताला इसमें आपको कुछ खुश नहीं है। रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी ओके इस्लामी सर, थैंक यू। शार में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें, बाकी जो लोग वेट कर रहे अरे हैं मैंने उनकी जो सर, मैंने इनकन्वीनियंस। मैंने सोच ली, मैंने तो ड्रिंकिंग बंद कर दी मैंने मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है, क्यों बात नहीं करते। मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे अब, ठीक खत्म, सब गलत है। नहीं अब दिल नहीं अच्छी गवारा कर बात। रहा है, मतलब कि नहीं, इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है, और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है, मैं कलमा और जरूर पढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल तमाम पढ़ूंगा। बातें सुनेंगे। मैं अगर कल यासिर साहब ने सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर उन पे जाके उनसे कहूंगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए। अल्लाह मैं वेट नहीं और कर हम सकता सब सर, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए अब। मुझे नहीं लेकिन पता, नहीं अब जो कैसर होना भाई, है होगा। जी ओके, कैसर कुछ भाई, कह रही हैं मेरी आप? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी सांस का पता नहीं होता। अगर भाई आज इरादा करके बैठे तो आप भी कलमा पढ़ा दें, कल मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे, एक एपिक चीज हो जाएगी। हम क्यों डिले कर रहे हैं भाई के कलमे को? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना मैं करे, नहीं, कुछ पता नहीं होता। मैं भी कहता हूँ कि आप अभी पढ़ लें, एक चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद आप मुफ्ती यासर साहब के पास दोबारा आप पढ़ना चाहें, एब्सोल्युटली। सर आई एम रेडी। आमिर भाई, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. मेरे शायद वो सुन नहीं पा रहे। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके सर। बिस्मिल्लाह, सर एक बार और। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अर्रहमान, अर्रहमान, इर्रहीम, इर्रहीम, निर्रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहमत वाला है। तो मैं चाहता हूँ साथ आपको इसका पता भी चल जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। अशहदु, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहू लहु लहु लहू व अशहदु व अशहदु हदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। Welcome to Islam, brother. Thank you, That's sir. what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. ये जो आपने पढ़ा है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं सर, इंग्लिश में तो मैंने इसका मीनिंग देखा है। चले मैं देख रखा अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। मैं राजा साहब से मैं रब्ता करूँगा, अभी स्ट्रीम के दौरान उनकी टीम से रब्ता करूँगा, उनको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको प्यार से मोहम्मद कह रहा हूँ। नाम अपने लिए आप जो चूज़ करें। ये मेरा प्यार है कि मैं आपको अब मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात के बाद मुझसे ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है।
तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटेन माय सेल्फ सर विद मैं दिस। शाम से वेट कर रहा था, आपका मैंने चेक किया कि आप लाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि मैं परेशान था। आपने पिछले हफ्ते लाइव नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था। अगर आप लाइव नहीं करेंगे और यासिर सर भी नहीं आए लाइव करने के लिए, उसमें मुझे मतलब कि मैं जाना बहुत था 1 डेस्परेट इवेंट। था। पूरा वीक मेरा बस ऐसे ही गया है कि क्लासेस मैंने की, लेकिन मेरा का था कि जल्दी से जो है लाइव आए तो मैं अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गवाह रहिएगा हशर के मैदान में कि जब हम पे मुश्किलें पड़े तो फिर आप ही आगे बढ़ के कहें कि ए रब, ये गुनाहगार ही सही है, ये स्याहकार ही सही है, लेकिन ये वो हैं जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी स्याहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी अल्लाह ये काम लेता है, इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप लोग? मैं इकबाल मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जो आप ईमान के लिए अल्लाह की तरफ लपकने के लिए जो डेस्परेशन होती है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बस इकबाल कमबख्त मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं। है अयां योरशे तातार के अफसाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सर कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं मतलब कि मुस्लिम घर में ही क्यों नहीं, मतलब कि मैंने बर्थ ले लिया, कितना इजी हो जाता मेरे लिए ये सब चीज़ें। और आते हैं ऐसे थॉट्स सर कभी बस कभी, क्योंकि हकीकत ये है कि एक प्लान आप सोचते हो, एक प्लान अल्लाह की ज़ात सोचती है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर, मैंने कभी लाइफ, मतलब कि मैं 22 ईयर्स का हूँ इस समय, जस्ट 22 ईयर्स, और मैं इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। मैं प्रिटी गुड स्टूडेंट भी हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इंडिया के, मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी कुछ होगा लाइफ में कभी मेरे साथ। जो टाइम आप ऐसा अपनी यू एज, टर्न लिया है मेरी लाइफ ने, जो आप मैंने बयान कभी कर नहीं रहे हैं ना, मेरी एज भी बिल्कुल यही थी। और जो जिंदगी आपने बयान की है, इससे कहीं आगे की जिंदगी मैं सोच के और चीज थी। मगर एक चीज आप सोचते हो, एक अल्लाह सोचता है। एक प्लान आप करते हो, एक प्लान वो करता है, और उसी का प्लान गालिब होकर रहता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें अपने साथ होते ऐसी देखी हैं जिनका कभी इरादा नहीं किया था, मगर वो हुई, और उन्होंने होकर ये बताया कि ये अल्लाह का काम है, ये इंसान की कोशिश नहीं थी। और ये बातें जितनी सादा हैं उतनी पेचीदा हैं। मगर कमाल की बात ये है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, उसके सीने को फिर कुशादा कर देता है, उसके लिए बातें आसान होती चली जाती हैं। और अल्लाह ने आपके लिए, जिस तरह आपने बयान किया ना चीज को, मैं इतना रिलेट कर रहा था उस चीज से कि कोई वक्त था कि कभी इस्लाम की समझ नहीं आती थी, और एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं तो पता चलता है। तो अल्लाह के फजल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के फजल के अलावा कुछ भी नहीं। कभी ये कमाल नहीं है किसी का कि मैं अपनी ज़ात की वजह से इस हदायत को हासिल कर लूँ। हाँ, कोशिश इंसान करता है, उसका दखल है, मगर इसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के फजल को जाता है। अल्लाह का फजल था जो आप पर हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तकामत दे। आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, सफ़र शुरू करें। और जो आपने बात की ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हकीकत यह है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि इंसान अपने खालिक से दोबारा मिल जाए, उससे बिछड़ा हुआ। आप ऐसे समझे ना कि जैसे उस माँ की हालत आप समझे, या उस बाप की हालत समझे कि जिसके बच्चे बचपन में उससे अलग हो चुके हों, उससे बिछड़ चुके हों, और कई सालों के बाद वो उसकी आंखों के सामने आए, उस माँ के सामने वो बच्चे आए, जो उन बच्चों से मिलकर उस माँ की हालत होती है। एक खालिक व मखलूक के साथ मिलकर इस रिश्ते, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर की बात। सर आप जिन ये लोगों ने मान लीजिए जिंदगी को ठट्ठा और मजाक समझा है, उनको ये बात समझ नहीं आएगी।
जिनको इस हकीकत का इदराक है कि इसके बाद कोई हकीकत है, जिनको इस चीज से आगाही है, आशनाई है कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होनी, उनको इस दर्द का एहसास, उनको इस हकीकत का पता है। बाकी मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कर लें। जिसको इस हकीकत का इदराक हो गया वो नहीं हंसता, जिसको समझ आ गई है कि मर कर किसी के सामने खड़े होना है वो नहीं हंसता। वमन कान यरजू लिका रब्बिही, वमन कान यरजू लिका रब्बिही, जिसको ये उम्मीद है कि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, वो अल्लाह पर ईमान ले और नेक अमाल करे। ये वो मोहब्बत के सोते हैं मेरे भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हिदायत हर किसी के बस की बात होती तो इधर लाइन ना लगी होती। कमाल करते हैं। अल्लाह ताला आमिर भाई आपको बहुत जज़ा दे। इट्स अब मुझे पता है जो बाकी स्ट्रीम है हमारी अब सुपर चार्ज होने वाली है। अब जिसने बात करने के लिए आना है, ओके लेट्स नॉट इवन कंप्लीट द सेंटेंस। सर आपको मैं एक बस छोटा सा कल मतलब जी, कि सर जी। मैं यूट्यूब पे रात में 2 बजे सर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि सलाह कैसे, मतलब कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। मुझे कुछ नहीं पता और मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ लाइट वाइट बंद करके कि मतलब कि बस मुझे नहीं पता क्या, मतलब कि बस बैठ के बस प्रे कर रहा हूँ कि बस अब मुझे बस मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें से मुझे बाहर आना है, बस इस लाइफ से मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं यूके में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं लॉ पढ़ाता था मैं, तो आइजक नाम था उनका, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुसलमान थे। तो वो एक बांग्लादेश का लड़का आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने अखलाकन बताया, मैंने कहा आइजक ये हम मुसलमानों का ये ग्रीटिंग्स होती है। तो उसने हंस के कहा मैं खुद मुसलमान हूँ। मैंने कहा यार आइजक आपका नाम है, मुझे गेस नहीं हो सका। उन्होंने कहा वो मेरे पेपर्स पे लिखा हुआ तो वो ऐसा ही था। खैर उन्होंने अपनी बात बताई, कहते हैं कि मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया अपनी ज़िंदगी में। क्रिश्चियन थे वो पहले, तो मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया, लोग मुसलमानों की नमाज़ें देखी, मुसलमानों के दीन को पढ़ा, सब कुछ देखा। सारा कुछ करने के बाद तो कहते हैं कि एक दिन 10 साल गुजर गए जब मुझे एक दिन मैं घर आया, थका हुआ था, हाथ धोने लगा, तो हाथ धोते धोते मुझे ख्याल आया कि हाथ मुंह धोना, जब बंदा बाहर से आता है थका हुआ होता है तो कहने मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वज़ू कर रहा हूँ, यानी मुझे गैर इरादी तौर पे मैं कुल्ली भी कर रहा हूँ, मैं सारी इनके जो वज़ू के हैं अरकान, फ़राइज़ और सुन्नतें मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वहीं से लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब नहीं। तो कहते हैं फिर मैंने उसको वज़ू ही पूरा मैंने किया और फिर मैंने जाके अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं मैंने इस तरह से मैंने वो सारा कर लिया। फिर कलमा पढ़ा, सारा कुछ किया, वो और बात है। तो जो आप बात बता रहे हैं मुझे उनकी बात मेरे जहन में आ रही है कि समटाइम्स इट्स दैट कॉलिंग, कि रात को 2 बजे लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर योर रब, सर्चिंग फॉर योर लॉर्ड, एंड लेस देन 24 आवर्स लेटर हियर वी आर। अब तो सर बस ये है कि सर मुझे इस्लाम को ज़्यादा डीप में समझना है और अब बहुत मतलब कि मुझे बस इसी चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करना है और एक मैसेज स्प्रेड करना है, लोगों को भी समझाना है कि आप समझें इस चीज़ को। आप अभी ईमेल जो है मैं आपका शेयर कर दूंगा मुफ्ती यासर साहब को भी, आमिर भाई को भी। आप जितनी भी आप दीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी चीज़ें हैं, आप राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ योर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड थ्रू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह थैंक यू ताला आमिर आपको सर, आप तशरीफ लाए। मैं इंशाअल्लाह थैंक यू ब्रदर कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी ये स्टोरी सुनने का और मेरे ईमान को ताज़ा किया। अल्लाह इसका भी अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। ये तो टिप है माउंटेन की सर, ये तो टिप है माउंटेन की सर। लास्ट 6 मंथ सर मैं जानता हूँ सर मेरा कैसे गया, मेरे सेमेस्टर खराब हो गए चक्कर में, मेरे सीपीए गिर गए। कोई बात नहीं, ये यहाँ जो गिरा है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल हुआ है। बेफिक्र रहें। आपने जो खजाना दरियाफ्त किया है ये खजाना दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कई दुनिया के खजानों से बेहतर जो आपको तलाश हो गई है जो चीज़,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा दूसरे मामला उसमें जारी रखें। थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब ईमेल पे इंशाल्लाह आपसे मैं राब्ता करूँगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह ताला